Hi students. In our schools, we organize different competitions, different activities, cultural and co-curricular to develop your all-round personality. In the same sequence, declamation or speech plays a most important role. हमारे विद्यालयों में नियमित रूप से अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा इसके सिवाय बहुत सारी अन्य गतिविधियां चलती रहती हैं और उसी के साथ भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद, ऐसी प्रतियोगिताएं भी हमारे सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हैं. Dear students, today we would be learning how to write good speech and of course how to deliver a good speech. Let's go through this particular chapter or the presentation how we can develop a beautiful speech not only for the exams but even in actual situation or for the general audience. Joy Rajan and dignitaries on the dais, dear teachers and my beloved students, I deem it an honor and a privilege to be here with you this evening. Before I start my brief talk, I just want to tell you one thing. I'm astounded by the sound of silence. It's so concrete. The silence and the discipline. You deserve a big round. Experience that I had when I arrived at JCS. I still remember the day I went to JCS to have my uniform fitted. As soon as I walked through the door and my mum introduced us, I heard a, "Oh, you'll have to get your hair cut," and it was Mrs. Dunn that told me that. Over the years, I've been told this again and again, mainly by Mr. Main. I even got a detention on the last day of school for not having my hair cut. Can you believe that? I would like to use this speech as a way to tell all of you what I love about John Collett. I love my friends and my class. I think our class got on together very well. We did this especially during our Shakespeare. Students, let's try to understand what is a speech and how a speech is written and presented. Speech refers to a formal address or discourse delivered to an audience. यानी कि ऐसा वक्तव्य जो औपचारिक रूप से किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को, श्रोताओं को दिया जाता है. For example, in your morning assembly, the audience would be all the students and the teachers present in the school. Similarly, speeches are also delivered on platforms of politics. For example, political speeches in different rallies of political parties. The speech, in fact, could have been delivered on different occasions in the schools like annual function, Independence Day, Republic Day, and there the public would be the ऑडियंस. तो श्रोताओं के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार के श्रोता है और उसके हिसाब से ही हमारी स्पीच का मटेरियल होना चाहिए. यानी कि औपचारिक ऐसा भाषण होता है जो विशेष श्रोताओं को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है. दैट इज स्पीच. पार्ट्स ऑफ ए स्पीच. एवरीथिंग कंटेन्स डिफरेंट पार्ट्स. अब स्पीच जो हम तैयार करेंगे उसके भी अलग अलग पार्ट्स होंगे. फॉर्मेट, opening, address and conclusion. It is more important how to open, how to start a speech than content. What type of content the speech should have, यानी भाषण कैसे शुरू करें और उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल हो. एक्सप्रेशंस, डिस्टेंस एक्सप्रेशन, भाव हमारे बहुत अनिवार्य होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भाषण में. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स. जब हम एग्जाम्स के लिए स्पीच को लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा पूरा ध्यान उस ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पे होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट वर्ड्स को और स्पेलिंग्स का, सही स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करें. कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल. और हमारा जो स्पीच का मटेरियल होगा उसके विचार एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने चाहिए, एक कोहेरेंस उसमें बनना चाहिए. ऐसा ना हो कि एक आइडिया हमने कहीं का दे दिया और दूसरे विचार में कुछ आइडियाज हमने कहीं और का दे दिया. नेक्स्ट वन, फॉर्मेट फॉर स्पीच राइटिंग. उसमें क्या क्या फॉर्मेट है. हेडिंग, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, द हेडिंग शुड बी कैची एंड इन नोट मोर देन 5-6 वर्ड्स. हेडिंग हमारा 5-6 वर्ड्स में हो सकता है. यू कैन गो एज क्रिएटिव एज यू वांट विद दिस वन. जस्ट मेक श्योर यू डू नॉट डिवोट टू मच टाइम टू इट इन द एग्जाम. कहते हैं कि गुड बिगिनिंग इज हाफ डन.
तो ये हेडिंग की बात है। अगर हमारा हेडिंग बहुत अच्छा है डियर स्टूडेंट्स, उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन भी स्टूडेंट्स हमारे एग्जामिनर पर पड़ता है, परंतु हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हमारा पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम डिवोट किया जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पूरे का पूरा समय इसके हेडिंग में ही लगा दें। ओपनिंग लाइन, दिस इंक्लूड्स सैल्यूटेशंस। आप एड्रेस कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन एंड द टॉपिक। मेक श्योर you do not mention your personal details, name, school name, etc. एग्जाम्स में जब हम बात करते हैं ओपनिंग लाइंस को लिखने की, जब तो आप ओपनिंग लाइन एक्चुअल भाषण में दे रहे हैं, वहाँ ऑब्वियसली आप इंट्रोड्यूस करेंगे माई सेल्फ डैश डैश डैश, अपना नाम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इन एग्जाम्स जब तक आपको कहा ना जाए कि आप कौन हैं, क्वेश्चन में ना हो, तब तक वहाँ पे आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करोगे, पर्सनल डिटेल्स। एग्जाम्पल, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, अब कैसे इंट्रोड्यूस करना है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, यहां पे एक्चुअल में आप नाम दोगे, अदरवाइज क्वेश्चन वाला नाम आपको डालना है। आई स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक का क्वेश्चन है उसको आप लिखेंगे, या you could start with the quote relating to the topic and then go with the salutation and introduction. भाषण शुरू करने के दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, या तो आप सीधा ही सबसे पहले सैल्यूटेशन कर देते, जो आपकी ऑडियंस है उसमें एक प्रायोरिटी हमारी फिक्स होती है कि जैसे सपोज करो स्कूल में है मॉर्निंग असेंबली, तो प्रिंसिपल सबसे पहले आएगा। अगर आपका कोई फंक्शन है तो आप वहां पे सबसे पहले ऑनरेबल चीफ गेस्ट से आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अदरवाइज जनरली प्रिंसिपल्स। और दूसरा तरीका यह रहता है कि हम लोग कुछ कोटेशंस, और कुछ आपने देखा होगा हिंदी स्पीचेस में डिस्टेंस को जब भाषण होते हैं स्कूल्स में, तो लोग पहले दो किसी संस्कृत का श्लोक या किसी हिंदी का दोहा या कोई एप्रोप्रिएट शायरी जो होती है उसे इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी हम किसी कोटेशंस को किसी बहुत अच्छे राइटर, एमिनेंट राइटर्स की या पोएट की किसी कोटेशन को कोट कर लेते हैं, और उस कोटेशन के बाद द कोटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक व्हाट यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, यानी जो भाषण का विषय है उससे संबंधित अगर किसी बहुत प्रतिष्ठित कवि की कोई कोटेशन आपको याद आती है या कविता की लाइनें याद आती है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और तब आप अपना सैल्यूटेशन शुरू करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ बॉडी, अब इसको टेक्स्ट को कैसे डेवलप करें, इट्स द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग स्पीच। जो आप स्पीच तैयार करें उसका मुख्य पार्ट होता है बॉडी। इट इज ऑलवेज प्रेस्क्राइब्ड दैट यू बिगिन विद द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन द टॉपिक। आप उसे शुरुआत में इंट्रोडक्शन दे दें। इट्स मेंट टू बी प्रिसाइज, बहुत संक्षिप्त होना चाहिए इंट्रोडक्शन। देन यू नीड टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन, the problems, if any, and whether after any corrective actions, betterment in the situation has been observed or not. आप अपने भाषण में इंट्रोडक्शन देंगे, कोई मान लो समस्या के ऊपर है तो उसके समाधान के बारे में भी आप बात करोगे। इट मे इंक्लूड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक इन क्वेश्चन। उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, लाभ क्या है, नुकसान क्या है उस पर्टिकुलर स्पीच के ऊपर। सपोज करो डिसिप्लिन की आप बात करते हो उस भाषण पे, तो उसमें आपको डिसिप्लिन के क्या महत्व है। नाउ here it is important to follow a sequence. एक क्रम होना चाहिए. It is possible that you have too many points of very few points. When you have a lot of varied points, it is better you choose a few best ones and write a line on each. In case you have very few already, explain them in at least 2 lines each. Depend करता है कितने पॉइंट्स आपके दिमाग में, कितने आइडियाज आते हैं. अगर आइडियाज ज़्यादा है तो एक एक लाइन में आप डिस्क्राइब कर सकते हो. अगर आइडियाज कम है, पॉइंट्स कम है, तो 2-2, 3-3 लाइन्स में भी आप उसके ऊपर बोल सकते हो या लिख सकते हो. You have to strictly follow the prescribed word limit. ये ध्यान रखें, क्वेश्चन पेपर में आपको शब्द सीमा दी होगी, आपको शब्द सीमा के अंदर ही अपनी स्पीच को लिखना है. वो हम जब नोट राइट मेकिंग की बात कर रहे थे, समराइजिंग की बात कर रहे थे, वहाँ हमने टेक्निक सीख ली है कि कैसे हम समराइज करते हैं, उस स्पीच को ब्रीफ कैसे लिखा जाता है. सिग्निफिकेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमें महत्वपूर्ण होती हैं, याद रखनी है. ऑलवेज बिगिन विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. जो सबसे ज्यादा मजबूत है, जो पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है अपनी स्पीच. मान लो कोटेशन बहुत अच्छी, 3-4 कोटेशन आपके पास हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आपको बहुत इंप्रेसिव लगती है, उसे आप इंट्रोड्यूस करवाएं. यू कैन अकोमोडेट द वीक वंस इन बिटवीन एंड एंड विद अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. बाकी चीजों को आप बाद में या मध्य में जोड़ सकते हैं. नंबर 2, feel free to give your personal opinion in 1 or 2 lines. स्टूडेंट्स, इस बात के भी प्लीज ध्यान रखें, जो हमारा भाषण होता है वो हमें ध्यान देना है कि उसमें हमारे अपने व्यूज भी होने चाहिए. वो किसी भी श्रोता को ऐसा ना लगे कि रट्टा मारा हुआ है, क्रैमिंग की हुई है, जैसे जनरली लोगों को आप लगता है. वहां पे हमारा एक ना कोहेरेंस रहता है, ना हम अच्छा जश्य दे पाते हैं, ना हम ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं. तो इट्स मैंडेटरी कि अपने ओपिनियंस को भी उसमें हम एक्सप्रेस करें. एंड व्हेन यू राइट द क्वेश्चन इन एग्जाम, वहां पे भी अपने ओपिनियंस को वहां पे एक्सप्रेस करना है. एंड द थर्ड वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक.
There are chances you may get ideas linking from one to another that may deviate you from the main point. You have to refrain from doing this. हाँ, ऐसा भी कई बार आता है, बहुत सारे विचार मन में आते हैं जो हमें एक दूसरे की ओर भटका देते हैं। तो मैं मेन ट्रैक पे अपने पॉइंट के हिसाब से, अपने टाइटल के हिसाब से, अपना जो हमारा क्वेश्चन मटेरियल है, सब्जेक्ट मैटर है उस स्पीच का, वहां से डेविएट नहीं होना है। इस बात पे प्लीज आप ध्यान रखें कि हम ऐसी प्रैक्टिस ना करें कि एक पॉइंट से कहीं और चले जाएं। इस बात पे भी आपको फोकस करना होगा। Giving solutions. We need to remember that wherever we elaborate a problem, we always have to mention the steps being taken to improvise the situation and suggest a few solutions as well. सिर्फ समस्या खड़ा करने से बात नहीं बनती। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बिजनेस स्पीचेस की बात करते हैं, किसी स्पीच को अगर हमने किसी प्रॉब्लम को एनहांस कर दिया है, सपोज करो ड्रग एडिक्शन की एक सब्जेक्ट हमारा आता है कि आपने भाषण देना है विद्यार्थियों में बढ़ रही ड्रग एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन अमंग यूथ, तो वहां पे आप उस समस्या के ऊपर तो बहुत कुछ कह देते हैं, बट वी ऑल्सो नीड टू सजेस्ट सम सॉल्यूशंस कि हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ लॉज द गवर्नमेंट शुड make, what type of environment we the parents should give them, what type of environment and education institution should provide them. ऐसे बहुत सारे सजेशंस हम दे सकते हैं, वो हमें मैंडेटरी है, अपने भाषण में उसे भी हम अवश्य दें। देन कंक्लूजन, बहुत अनिवार्य है निष्कर्ष। The concluding line of course comes in the end, but they have their own importance. To conclude, we can thank the audience for their cooperation and their patience. It is very important to conclude what you have started. Never leave a speech or food that matter any of your answers open-ended. Dear students, निष्कर्ष की लाइनें आती तो सबसे लास्ट में है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, उसका महत्व कम नहीं होता। इसलिए कंक्लूजन में हम लोग को ध्यान देना है कि अपने स्पीच में जिन श्रोताओं ने जिस ऑडियंस ने आपको कोऑपरेट किया, पीसफुली आपको सुना, उनकी पेशेंस के लिए आप उनका थैंक्स कर दें। और साथ ही ऐसा ये भी एक फॉर्मल एटिकेट रहता है कि किसी भी चीज़ को जब आप शुरू करते हो, किसी क्वेश्चंस को, स्पीच को या आर्टिकल को, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी दैट यू शुड नॉट कीप इट ओपन एंडेड, आप उसे कंक्लूड जरूर कर दें, तो आपका निष्कर्ष भी उसमें होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्पीच राइटिंग। यूज लैंग्वेज विच इज सुटेबल फॉर द ऑडियंस। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो ऑडियंस आराम से समझ पाए। यूसेज ऑफ कोट्स इज हाईली रिकमेंडेड। अच्छी कोटेशंस का इस्तेमाल करें। मेक श्योर यू राइट इन पैराग्राफ्स में स्पीच को लिखें। रीड एज मेनी सैंपल्स एज यू कैन, और इतनी सैंपल प्रैक्टिस करते रहे लिखने की जितने आप लिख सकते हो। गिव न्यू आइडियाज एंड ओपिनियंस दैट मे हेल्प ड्यूरिंग एग्जाम। उस प्रैक्टिस से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। प्लान बिफोर यू पेन, जिससे पहले आप शुरू करते हो पहले एक प्लानिंग कर लें, हल्के से नोट्स बना लें, सब पॉइंट्स बना लें कि आपने किस किस पॉइंट्स के ऊपर उस स्पीच को लिखना है। द प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, दो तरह के स्पीच के पार्ट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रेजेंटेशन, कि अपने भाषण को आप कैसे अभिव्यक्त कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और सेकंड पार्ट है कंपोजिशन, उस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। एंड मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स, और एग्जाम में ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स के लिए अपने स्पीच को जरूर एक बार चेक कर लें। इन लैंग्वेजेस वी ऑल्सो पुट अटेंशन टुवर्ड्स द करेक्टनेस ऑफ स्पेलिंग्स एंड वर्ड्स। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सैंपल क्वेश्चंस ऑन स्पीच राइटिंग। किस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं, हम एक दो सैंपल आपके साथ शेयर करने वाले हैं यहाँ पे। नंबर 1, as Mukul Mahima of LLPS Public School write a speech to be delivered in school assembly highlighting the importance of cleanliness, suggesting that the state of cleanliness reflects the character of its citizens. अब आपको क्वेश्चन आता है कि किसी स्कूल के आप स्टूडेंट हैं और आपको भाषण देना है कि साफ सफाई का, स्वच्छता का क्या महत्व है और कैसे स्वच्छ परिवेश में ही एक स्वच्छ पात्र या कैरेक्टर का निवास होता है। Here begins the स्पीच। सबसे पहला है इसका टाइटल, जो टाइटल रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस। अब आपने यहाँ पे कोटेशन से शुरू कर दिया स्पीच को। इन द वर्ड्स ऑफ अ ग्रेट जॉन वेस्ले, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गुडनेस। अब आपने जॉन वेस्ले के वर्ड शुरू किए कि सफाई स्वच्छता का मतलब है अच्छाई के बिल्कुल नेक्स्ट। अब आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया शुरू स्पीच को। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई मुकुल महिमा। ये क्वेश्चन में आपको नाम दिया गया है। Stand before you all to highlight the importance of cleanliness.
Cleanliness is the state of or quality of being clean or being kept clean. It is essential for everyone to learn about cleanliness, hygiene, sanitation, and the various diseases that are caused due to poor hygienic conditions. An unclean environment is an invitation for a lot of mosquitoes to breed in and spread deadly diseases. In context of COVID-19 virus, the cleanliness has become more significant. इसका second part में dear students, the habits learned at a young age get embedded into one's personality. Even if we inculcate certain habits like washing hands before and after meals, a regular brushing and bathing from a young age, we are not bothered about keeping public places clean. For this, on 2nd October 2014, the Indian Prime Minister launched a nationwide cleanliness campaign, Swachh Bharat, to provide sanitation facilities to every family, including toilets, solid and liquid waste disposal system, even in villages. A clean environment is a green environment. With less people falling ill, cleanliness hence is defined to be the emblem of purity of mind. Thank you. तो ये कंक्लूजन भी हमने कर दिया. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. Let's do and second one. Second question, second sample question क्या आपका? There is centralized in incidents of violent behavior of students as a matter of concern for all. The problem can be curbed if students learn how to manage anger. Write a speech on the topic in 150-200 words to be delivered in the school morning assembly. अब आजकल आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, बच्चों में बहुत ज़्यादा आक्रामक बच्चे हो गए हैं, बहुत गुस्सेल हो गए हैं, बहुत वायलेंट हो गए हैं, और जितनी जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे तो इसके हालात और ज़्यादा खस्ते हैं. तो उसके ऊपर हमें कैसे मैनेज करना है एंगर को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है. हाउ टू मैनेज एंगर इज द टाइटल. Honorable Principal, respected teachers and my dear friends, today I would like to share with you few ways to manage anger. अब यहाँ पे आपने कोटेशन नहीं दी, सीधे एड्रेस पे आप आगे सॉल्यूशन पे आ गए. The growing intolerance among the new generation resulting in violence towards teachers as a matter of grave concern. The old days Guru Shishya Parampara teacher decibel system is losing its sheen. Aggressiveness in students may be triggered by several things, as a self-defense reaction, stressful situations, overstimulation, or lack of adult supervision. The second part, it has become the need of the hour to curb the situation. Life skills classes shall be inculcated and the timetable. Teachers should be given training to handle such defiant and hostile behavior. Meditation and deep breathing also helps and thus should be practiced every morning. Students must be taught to count till 10 before reacting in anger. Also, sessions on anger management and its far-reaching importance must be held. Remember, anger is one little short of danger. It makes it all the more important to be able to diffuse one's anger. It's never too late to begin, because a wise man once said, for every minute you remain angry, you give up 60 seconds of your peace of mind. Thank you. These are the two samples and the last one is here. Write a speech in 150-200 words on benefits of early rising. सुबह जल्दी उठने के क्या क्या फायदे हैं. आपको नाम भी दे दिया, करुणा करनाप है, हेड बॉय या हेड गर्ल. बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग. ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. ये सब में लगभग कॉमन सा आ रहा है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली की आप स्पीचेस की बात कर रहे हो. टुडे आई, जो भी आपका नाम है, योर हेड गर्ल और हेड बॉय, स्टैंड बिफोर यू ऑल टू हाईलाइट द फार रीचिंग बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. आप इस कोटेशन को पहले भी लिख सकते थे. अगर आप यहीं से शुरू करते हैं और फिर आप एड्रेस करते हैं तो भी बात बन सकती थी. इट हैज बीन प्रूव्ड दैट मॉर्निंग पीपल आर परसिस्टेंट एंड प्रोएक्टिव. इट लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस, ग्रेटर सक्सेस एंड हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. Rising up early also relieves stress
and tension because it gives you the time to squeeze and a workout before you get distracted. This is why morning people tend to be healthier and happier as well as have lower body mass indexes. For this, one needs to maintain a proper schedule and has to go to bed on time. You should restrict the uses of gadgets immediately before going to bed, and these tiny steps will help you become an early riser. Researchers have also said that early morning is the best time to study and gain knowledge. This will help you in staying ahead in the class and keep your grades up. Most entrepreneurs are early risers as they believe it is the key to success. Hence, if you don't develop a habit of waking up before the rest of the world, you won't be able to change the world. Thank you. Thanks dear students for watching this video. Thank you very much.